everybody. Guys, is my audio clear? Anybody? Any one of you? Can you hear me? Yes, sir. Yes, sir, we can. Okay. Okay, fine. Let's begin. कल ठीक है थोड़ा बहुत आप लोगों ने टैबली देखा था. Let's fire a tableau once again. Okay. और जो एक्सेल शीट से हमने कनेक्ट किया था कल, that is sample superstore. So again connecting with the same source. Or in this Excel file there were 3 sheets. We were dealing them one by one. So we started off with orders, the most interesting one. And we created certain visualizations yesterday. One thing, if you notice, row ID is this time, it is already in dimensions. Or Tableau remembers. हाँ जी, कल क्या क्या विजुअलाइजेशन देखे थे हमने? We created row ID से तो कुछ काम नहीं बनता, तो we tried to measure something about row ID. So basically count a number of orders. So it is showing me count of row IDs. Now what do I do with this count of row IDs? There is only one bar and it is telling me how many row IDs. There are 9,994 row IDs. So this much number of rows. So that is total number of amounts. But this is analysis. But what do I do with this kind of analysis? So I need measures, but according to some dimensions. So yesterday हमने एक dimension कौन सा देखा था? Region. We chose region. It comes out something like this, and we tried different variety of things to represent this, and finally we settled for field map. ऐसे कुछ सर. दूसरे हमने नंबर काउंट ऑफ ऑर्डर्स देखा था अकॉर्डिंग टू the states. So again within the states we can do so many things: ascending order, descending order, row to column, column to rows. Heat map, the field map still doing very good. Bubble chart not doing so good now, and pie chart flunks. So ये भी कुछ हमने देखे थे. Now coming down to some representations. In presentations के लिए मेरे पास और क्या facility है? So we went ahead with mark. So there is something called marks. There is a marks card, and here it is giving me several facilities again. What are the charts I can choose, and depending on the various attributes which I can visually distinguish. So there are certain facilities like row IDs count. If I bring it to charts, and what about row IDs? Okay, count. If I represent it by
label. So I get to see the label, the value of these rows on each category. If I take it to color, now color, again row IDs are represented by bars height, but as well as there is color. So seemingly something going better. Can we do something with size? You see what is happening with size? So again, several representations, several things to leverage. प्रॉब्लम क्या हुआ था? प्रॉब्लम नहीं कह रहे, बट ये सब मुझे आज दोबारा करके दिखाना पड़ा, बिकॉज इफ आई वांट टू सेव माय वर्क, I go to file and I want to look for save option. There is no save option. So this is the third limitation of public version. देख पा रहे हैं ना आप स्क्रीन पे मेरी? मेरे को सेव करने के लिए I cannot save my work on my machine. However, this problem is not much of concern because there is option which says save to Tableau public. So if I click on this save to Tableau public, it prompts me to sign up on a Tableau public account. It is asking me to name it something, so let's call it Superstore job, whatever work we were doing here. And it is saying we are doing something. So my work is on Tableau public website now. GitHub प्रोफाइल बना रहे हैं आप लोग? क्या चीज से? GitHub? GitHub पे कोई प्रोफाइल बना रहे हो आप लोग? सर उसमें ना समझ नहीं आ रहा अपलोड कैसे करना है। कैगल बन गया, GitHub नहीं बना। कैगल बन गया, GitHub नहीं बना। अच्छा, so चलो anyway, so I can save those visuals created here. मैं अपने मशीन पर डाउनलोड नहीं कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर ला सकता हूँ. So this is a limitation. This is one limitation. But okay, I can't. There is a workaround. अगर मैं Tableau public account बना लेता हूँ तो I can save my work here. There are several options. I can share, I can download, I can do whatever. तो लिमिटेशन तो है, बट इतना मेजर भी नहीं है. यहाँ तक भी ठीक जी? सर इसमें एक ही शीट सेव होगी ना, बट अभी तो हाँ, जिस शीट पे मैं हूँ वो शीट सेव हो जाएगी. ठीक है सर आपके में ये ऊपर कॉलम और ये रोज आपने कैसे लेके आया है? मतलब कौन सा ऑप्शन से आया है ये? रोज और कॉलम समझा नहीं? जो आपकी भी वर्कशीट ओपन है, इसमें आप ये जो आपने कॉलम में स्ट्रीट रखा है, रोज में काउंट रखा है, ये ऑप्शन कहाँ से आया है? एक मिनट. यहाँ पर काउंट रो आईडी और स्टेट ये जो लाया हूँ, ये कह रहे हो? हाँ, ये ऑप्शन कॉलम और ये रो का ऑप्शन कहाँ से लिया आपने, ये बोल रहे हो? यहाँ से ट्रैक किया है मैंने उठा के. मैं भी अपनी स्क्रीन शेयर करूँ? मेरी में मतलब कैसे आएगा ये समझ नहीं आ रहा. ठीक है, शेयर करो, देखते हैं.
आ रही है स्क्रीन? अब मैं कहाँ से लेके आऊँ वो रोज और वो? यहाँ पर शीट पे क्लिक करो नीचे। ये हाँ, या अभी आप डेटा सोर्स वाली उस पे स्टेज पे थे कि डेटा सोर्स आपको कहाँ से लेने हैं। तो हमने एक्सेल शीट ले लिया एक, हम और भी ले सकते हैं। और अब हम यहाँ पर आ गए, तो यहाँ पर दिस शीट 1, दिस इज द प्लेस जहाँ पर हम अपने शीट्स क्रिएट करेंगे विजुअलाइजेशन के। ये तो एबीसी में आ रही है। हाँ, अभी क्योंकि एक ही चीज़ ड्रॉप की है, रो आईडी। अब वो रो आईडी में क्या दिखाएगा, क्या रो आईडी? रो आईडी इज 1 2 3 4 5 6, वो सबकी रो आईडी दिखाते जा रहा है। नाउ यू हैव ड्रॉप्ड स्टेट। ये एबी क्यों आ रहा है? आप ये वाली में भी तो यही था, रो आईडी और स्टेट। अब ये क्या दिखा रहा है आपको? ये सिर्फ एबीसी कहाँ पर दिखा रहा है? जहाँ जहाँ इंटरसेक्शन हो रहा है। मतलब रो आईडी 3 में स्टेट कैलिफोर्निया था, हाँ, रो आईडी 6 में भी कैलिफोर्निया था। तो जहाँ जहाँ जो रो आईडी जिस स्टेट में आ रही है वहाँ पर एबीसी दिखा रहा है, एंड दिस इज नॉट मेकिंग सेंस। इट इज़ बिकॉज हम हर रो आईडी पे देखने की कोशिश कर रहे हैं स्टेट कौन सा था। इस तरह से देखने का कोई तरीका नहीं रहता। वापस आ जाओ, कंट्रोल जी, कंट्रोल जेड, रो आईडी पे जाओ, go to row id, click on this, down below you see measures and choose count. ठीक है जी, अब ठीक है। ड्रॉप कर दो इसको। थैंक यू सर। दैट्स वेरी फाइन, बट आगे के लिए वैसे बताते रहा हूँ। आई मीन डोंट टेक इट अदरवाइज, बट ऐसे बड़ी दिक्कत हो जाएगी। आप कल का सेशन अटेंड नहीं करोगे, आज आप पूछोगे कि अब कल क्या क्या हुआ, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा मेरे को सारा वॉक थ्रू करना है। या तो रिकॉर्डिंग्स देखो, ये सर। या रूटीन में अटेंड करो। Yeah. There is I can understand if there is some efficiency, but at least you can follow recordings. आप लोगों को रिकॉर्डिंग मिल गया? नहीं, अभी नहीं मिला है। क्यों? आपके YouTube चैनल पे कल ही अपलोड कर दिया था। बट मैं जब सुबह देख रही थी मुझे तो नहीं दिखा। आपका जो प्लेलिस्ट है, कौन सा प्लेलिस्ट है आप लोगों का? चेन्नई वाला है। चाइना बोल रही है सर, है, आ गया है। कौन से वाले पे? चेन्नई वाले पे? चेन्नई वाले पे नहीं करूंगा मैं क्यों आया? NCR वाला जो प्लेलिस्ट है उसमें कर रहा हूँ। अच्छा, जो हमारा वाला है उस पे? हाँ, जो मैंने जिसमें अपने वाला नहीं, मैं सोची उस पे आएगा। नहीं, जिसमें आर मॉड्यूल एक सेकंड। आपका पूरा अपलोड किया था, वो वाला। चलिए ठीक है, तो यहाँ तक ठीक ठाक है, ये सब हो गया। लेकिन नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप इज ये काउंट रोज को मैं बार की हाइट में भी देख रहा हूँ, एंड जस्ट टू मेक माय बार चार्ट मोर प्रेजेंटेबल, मैंने काउंट रोज को साइज पे भी रख दिया है, या कलर पे भी रख सकता हूँ, जो भी अच्छा लग रहा है आप लोगों को वो रख सकते हैं। तो दिस बिकम्स मोर प्लीजिंग। नाउ कम्स इज, कैन आई लिवरेज दिस कलर एंड साइज एंड लेबल दिस फॉर समथिंग एल्स, रादर देन मैं रो काउंट ऑफ रो आईडीज को ही रिप्रेजेंट करता रहूँ। मैं कहता हूँ कुछ और ना देख लो, इससे अच्छा। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर मैंने स्टेट देखा, काउंट ऑफ रोज देखा, लेकिन पहले जो मैं रीजन देख रहा था वो रीजन नहीं दिख रहा अभी। If I do it this way, let me do this. If I bring region to color, and what do you see? वो साइड में लेबलिंग आ ली ना, रीजन वाइज कलर कर दिया उसने ना। Correct. You see, tab is smarter than you think. रीजन को देखते ही वो समझ गया कि ये तो कैटेगोरिकल वेरिएबल है, तो इट इज नॉट वर्किंग इन शेड्स ऑफ ब्लू एनीमोर। सडनली उसने डिस्टिंक्ट कलर्स लिए, कलर कोडिंग लिए, एंड या सीम्स ब्यूटीफुल। और ये जो स्टेट्स हैं उनमें काउंट ऑफ रोज, काउंट ऑफ ऑर्डर्स कितने हैं वो भी पता चल रहा है, एंड टू विच रीजन दीज बिलोंग, अब वो कलर कोडिंग भी आ गया है।
यू कैन ट्राई डिफरेंट थिंग्स अगेन हिट एंड ट्राई। मैं पहले बोला था बहुत ज़्यादा इसमें कुछ समझने या समझाने के लिए कुछ ऐसा है नहीं, इट इज़ ऑल अबाउट हिट एंड ट्रायल। मैं भी वही कर रहा हूँ इनफैक्ट, जो अच्छा लगेगा, जो बहुत लॉजिकल लगेगा, उसे लेकर के हम उसे फाइनल करते हैं, बाकी तब तक हिट एंड ट्राई करते हैं। वी कैन चेक साइज। नाउ साइज के हिसाब से करना ठीक नहीं है, बिकॉज साइज इज यू नो इट इज इन सेंट्रल, ईस्ट, साउथ, वेस्ट। तो साइज के बेसिस पे उसने डिसाइड कर दिया कि किस रीजन में सबसे ज़्यादा ऑर्डर है, लेकिन रीजन जैसी चीज़ को, एक कैटेगोरिकल वेरिएबल को साइज में देखना, यू सी, नॉट लुकिंग वेरी नाइस, नॉट वेरी इंट्यूटिव। लेबल कर सकते हैं, हाँ लेबल करने में फिर भी ठीक है। लेकिन मेरे ख्याल से ये सबसे सही लग रहा है। यहाँ तक भी ठीक है। करके देखते रहना साथ साथ, मेरे हो पा रहा है ना? यस सर, ऊपर सर हो रहा है। हाँ, कुछ कंफ्यूजन हो जाए, कुछ अलग चीज़ हो जाए। अब मैं कहता हूँ ये तो बहुत बढ़िया है, कलर पे मैं रीजन ले आया, कैन आई डू समथिंग एल्स? मैं कहता हूँ कलर पे तो हमने रीजन ले लिया, क्यों ना ऐसा करें कि लेबल पे हम ले लेते हैं, क्या ले लें, कुछ तो ले लें। कंट्री, सपोज मैं कहता हूँ कंट्री, कंट्री तो यूएस है। मैं कहता हूँ सेगमेंट ले लेते हैं, कस्टमर सेगमेंट, कि कस्टमर हमारा किस सेगमेंट को बिलोंग करता है। तो मैं कह रहा हूँ रीजन को तो डालते हैं लेबल पे, कलर में देख लेंगे हम सेगमेंट कि हमारा कस्टमर किस सेगमेंट को बिलोंग करता है। और अब ये कुछ ऐसा दिखने लगा। यू आर गेटिंग व्हाट इज हैपनिंग? कहानी कहाँ से शुरू की थी? मैंने देखा स्टेट, कौन से यूएस स्टेट से कितने कितने ऑर्डर्स हमें मिलते हैं, एंड वी सॉर्टेड इट इन डिसेंडिंग ऑर्डर। So we got to see California highest, then New York, Texas, Pennsylvania, Washington, Illinois, and so on, all the 51, or whole 9 yards. फिर हमने देखा कि ओके, ये तो बड़ी अच्छी बात है, हम देख रहे हैं कि कौन से रीजन को ये स्टेट बिलोंग करते हैं। सो रीजन इज समथिंग क्रूड, नॉट वेरी स्पेसिफिक, सो जस्ट लाइक एनी ऑर्गेनाइजेशन, सो दिस इज नॉट एनी जोग्राफिकल डिनोमिनेशन। किसी गवर्नमेंट बॉडी ने या किसी नेशन ने नहीं बोला है कि हमारा ये वेस्ट है, ये साउथ है, ये ईस्ट है। ये कैसे डिसाइड होता है? ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन, लाइक हमारे लिए वी डोंट हैव साउथ, ईस्ट, वेस्ट, दैट काइंड ऑफ थिंग। Emarticus has regions like NCR region, Mumbai region, and Chennai region, that kind of thing. So ये कोई स्टैंडर्ड नहीं है। तो हम देख रहे हैं कि इस कंपनी ने, लेकिन कंपनी को तो बताना पड़ेगा ना, क्लाइंट तो यही है हमारा, कि आपके कौन से रीजन से कौन से स्टेट बिलोंग करते हैं, वो भी देखने लगे। फिर हमने कहा कि ये भी देख लें कि कस्टमर सेगमेंट कितना कितना हो रहा है, कौन से सेगमेंट से कितना ऑर्डर आता है। वी हैव 3 सेगमेंट्स इन कस्टमर्स, ऑफ कस्टमर्स। वन इज कंज्यूमर, दैट इज रिटेल, then there is corporate, and then there is something called home office. ये सेगमेंट कस्टमर्स का है, प्रोडक्ट का है, पता नहीं, बट फॉर नाउ हाँ मतलब सेगमेंट देख पा रहे हैं। एनी प्रॉब्लम? एनी प्रॉब्लम इफ यू नोटिस? सर, जो छोटे बार्स है उनका रीजन नहीं बता रही है। वो तो आई गेस बाय डिफॉल्ट होगा ना वेस्ट, ये वेस्ट 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 क्यों आ रहा है?
वेस्ट 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 तो इसलिए दिखा रहा है क्योंकि इनमें तीनों कैटेगरीज में लेबल वेस्ट है। इवेंचुअली लेबल पे मार रखा है ना आपने रीजन, तो वो रीजन तो बता रहा है लेकिन हर कैटेगरी का बता रहा है। अभी हमारे कहने का मतलब है, मतलब शर्माया मत करो ये बोलते हुए कि सर कुछ ज़्यादा हो गया है, बोल दिया था। हाँ जी सर। कुछ जरूरत से ज़्यादा नहीं हो गया ये। Rather than giving information now, this chart is confusing me because there is way too much information. I have tried to squeeze in one single chart. तो जस्ट बिकॉज कि फैसिलिटी है मेरे पास कि मैं इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, इस तरह से इतनी सारी इन्फॉर्मेशन टैब्ल्यू मेरे को अलाउ कर रहा है, क्या मेरे को कर देना चाहिए? नॉट लाइकली, नहीं करना चाहिए। या तो मैं कोई और तरह का चार्ट देखूँ जिससे ये कुछ बेटर हो जाए। लाइक हमारा पॉपुलर अगर फील्ड मैप देखूँ तो वो कुछ इस तरह से दिखा रहा है, लेकिन अगेन आई थिंक कन्फ्यूजिंग, अभी भी कन्फ्यूजिंग। या फिर मैं कुछ और सोचूं कि इन वेरिएबल्स को इस तरह से रखने की जगह क्या मैं कुछ और रख सकता हूँ? हाँ, रख सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल बाकी सब चलो ठीक ठाक चल रहा था, मैं कहता हूँ बजाय ये रीजन को यहाँ खिंच करने के, लेट्स ब्रिंग रीजन टू कॉलम्स एंड लेट्स सी व्हाट विल हैपन। जस्ट चेक इट आउट व्हाट विल हैपन इफ आई क्लिक ब्रिंग रीजन टू दिस। कॉलम्स पे ले आए, नाउ इट इज शोइंग यू कैलिफोर्निया के वेस्ट रीजन में कितने ऑर्डर, न्यूयॉर्क के ईस्ट में, सेंट्रल में, इसमें इसमें इसमें। नॉट हैपनिंग। रोज में ला के देखें, if I bring it to rows and let's do some descending order, maybe something like that. हाँ, अभी फिर भी कुछ ठीक है। एक्चुअली रीजन ही गलत चीज़ ले लिया हमने, सेगमेंट लेना चाहिए। इफ आई टेक सेगमेंट, सेगमेंट से हो जाना चाहिए बिकॉज हाँ ये ठीक ये है। बेटर है। जो दिखाना चाह रहा था वो यहाँ दिख रहा है। मैं सेगमेंट को बजाय वहाँ पर मैं कलर कोडिंग में और इसमें उसमें लेकर के जाऊँ। रीजन भी रखेंगे, रीजन भी रखते हैं, रीजन को भी छोड़ूंगा नहीं, रखते हैं रीजन को। लेवल पे क्यों कलर पे रखते हैं? कलर अच्छा लगा था हमें। रादर देन दैट मैं सारी इन्फॉर्मेशन को उसी बार चार्ट में ही इम्पिंज करने का कोशिश करूँ, बेटर टू स्प्लिट द बार चार्ट लाइक दिस। सो दिस इज कॉल्ड कॉलम वाइज स्प्लिटिंग। नाउ कॉलम में मैंने दो वेरिएबल्स दे दिए हैं। देर आर 2 डायमेंशंस, वन इज स्टेट, अनदर इज सेगमेंट। सो कॉलम वाइज स्प्लिट हो गया है इनटू 2 डायमेंशंस, फॉर 2 डायमेंशंस। एंड आई कैन सी पहले वही जिस ऑर्डर में यहाँ पर है उसी ऑर्डर में स्प्लिटिंग होगी। तो फर्स्ट स्प्लिटिंग अकॉर्डिंग टू स्टेट, all the count of row ID is splitted according to states first, and then within each state it is splitted according to customer segment. Descending order, बहुत ही बढ़िया। सर मेरे में एक चीज, जैसे जैसे सर आपके उसमें नाम जैसे तीनों आ रहे हैं ना सेगमेंट के, मेरे में खाली कॉर्पोरेट दिखा रहा है। जैसे बाहर तो दिखा रहा है बाकी दोनों के भी। अच्छा, यहाँ पर खाली कॉर्पोरेट दिखा रहा होगा। हाँ जी, वो हाँ, खाली छोड़ रहा है। हाँ ये थोड़ा बहुत होगा यार, वो अभी दिखाऊंगा जब डैशबोर्ड पे अभी डैशबोर्ड के डायमेंशन सेट करेंगे उसके बाद हो जाना चाहिए। सर मेरे में तो ठीक आ रहा है वो चीज तो, लेकिन सीरीज थोड़ी सी अलग है, इससे कोई फर्क तो नहीं पड़ता? सीरीज ये जो मतलब आपकी सीरीज में जैसे ये पहले कैलिफोर्निया है फिर न्यूयॉर्क। हाँ तो मेरे में ये डिफरेंट, अलग है। ये डिफरेंट कैसे हो गई? यहाँ शॉर्ट कर दिया कि नहीं? कहाँ पे ये कर दिया? ये डिसेंडिंग ऑर्डर में। हाँ
इसमें तो अल्बामा, अरिजोना, ये ABCD वाइज आ रही है हाँ तो शायद। सॉर्ट हुआ नहीं है ना फिर इसका मतलब। अगर मैं सॉर्ट पे क्लिक कर रही हूँ तो वो सॉर्टिंग तो कर ही रहा है, उसमें तो फर्क है ही नहीं, बट अच्छा वो सॉर्टिंग देखते डेटा हैं, की कर रहा है। देखते हैं कल एक बार, कल वाली रिकॉर्डिंग देखना पूरी, हो सकता है हैंडल हो जाए वैसे। और क्या कर सकते हैं? सो दिस इज within columns. I am giving 2 dimensions. What I can do else, I can give this in rows also. दूसरी डायमेंशन अगर मैं रोज में एंटर कर दूं, so tell me, do you like it better? yes sir. तो ये भी ठीक हुआ जी। Now we can see how many orders we received, from which state, and from within a state we can see कितने ऑर्डर्स कंज्यूमर सेगमेंट के थे, कितने कॉर्पोरेट, कितने होम ऑफिस। And this is okay. Going ahead, there is something called filter here. यहाँ पर कुछ फिल्टर करके आ रहा है। देयर इज अ फिल्टर कार्ड। ये यूज किया है आपने फिल्टर्स कार्ड? नहीं, ये यूज करके नहीं देखा? देखो अच्छा समझते हैं। मार्क्स में आप देख चुके हो, मैं बहुत सारी चीज़ें यूटिलाइज कर सकता हूँ, लेकिन सब चीज़ें करना ठीक नहीं है। अभी थिंक अबाउट इट, अगर मैं करंट शीट देखूँ, so this becomes my one clean sheet, a title chart. अभी यहाँ पर ऑलरेडी बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। इससे ज़्यादा करूँगा तो आई थिंक समझ रहे हो, कुछ ज़्यादा ही हो जाएगा। हालांकि ज़्यादा तो यही हो चुका है, वो हमने थोड़ा सा ट्रिक करा, थोड़ा सा खेले इधर उधर, तो पता चला कि एक बेटर रिप्रेजेंटेशन है। एंड व्हेन वी फाउंड दैट आउट, okay, it is good, but what if I add any more information? That is not a good idea. On top of that, see, what do I do with all 51 states? Usually when we have to present our result, it is always about something like, the top most, the topmost, top 3, top 10। बात समझ रहे हो मेरे? या who are the most critical one, bottom most people, last 3, last 5, last 10। यूजुअली हमारा प्रॉब्लम कुछ इस तरह का रहता है। तो फिल्टर हमें कुछ ऐसे ही फैसिलिटीज देता है। What do I present if I present this kind of bar graph with 51 bars and 51 into 3, because you have 3 segments? पागल नहीं हो जाएगा देखने वाला? कब तक देखेगा ऐसे से? कब तक तुम समझोगे, कब तक उसे समझाओगे? Let's bring row ID to filter. यहाँ पर ये बहुत सारी फैसिलिटीज देता है। एक एक करके देखना शुरू करते हैं। रो आईडीज को आपने ड्रैग किया फिल्टर पे, करके देख लो, और ऐसा कुछ पॉपअप आ जाएगा।
यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट वो सबसे पहले तो डिफ़ॉल्ट में ही कह रहा है आपको, देखो क्या कह रहा है, लिमिट कर दो टॉप 10 बाय काउंट ऑफ रो आईडी, यही करना है क्या? हम यहाँ से नहीं करेंगे, हमें क्योंकि अभी और भी चीज़ें देखनी है, लेकिन यू नो टैब्यू समझ रहा है तुम्हारी भावनाएं कि शायद ऐसे कुछ करने की कोशिश करोगे आप। सो दिस इज द फर्स्ट वन, जनरल। कस्टम वैल्यू लिस्ट, ये बेसिकली ये कैटेगरीज के लिए होती है। सपोज मैं देखना चाहूँ रो आईडीज कौन सी विच आर 10 20 30 40, बाकी नहीं देख रहे, तो वी कैन एंटर दोज कस्टम वैल्यूज। नाउ काउंट कर रहे हैं तो उसमें ये ज़्यादा सेंस नहीं करता, बट सपोज आई वांट टू फिल्टर दिस डेटा बाय यू नो सपोज सिटी वाइज, तो कुछ सिटीज़ का डेटा देखना है, कुछ सिटीज़ का नहीं देखना है, सो दैट काइंड ऑफ थिंग आई कैन एंटर कस्टम वैल्यू दैट कस्टम सिटी नेम। फॉर नाउ आगे चलते हैं। देयर इज समथिंग कॉल्ड वाइल्ड कार्ड। सो अगेन useful usually with alphabets. Alphabets like कैसे alphabets? Suppose you want to find states, only those states which start with A. So it should start with, so that can be your wildcard. Suppose you want only those row IDs. अच्छा रो आईडी में तो खैर इसका मतलब ही नहीं है, रो आईडी तो नंबर ही है, बट सपोज मेरा फिल्टर होता किसी लाइक सिटी नेम, ठीक है, तो गेटिंग दिस स्टार्ट विद एंड्स विद कंटेन्स, ये यूजुअली आपने सीक्वल में देखा है। सीक्वल वो तो जमाना हो गया सर। ठीक है, तो अगेन बट है, वाइल्ड कार्ड भी एक फैसिलिटी है। कंडीशन, कंडीशन कैसे? कस्टम कंडीशन। मैं कह रहा हूँ रो आईडी का क्या कर लूँ, एवरेज कर लूँ, ये कर लूँ, वो कर लूँ, जो भी करना है काउंट कर लूँ। सो नाउ दिस इज वेयर योर कॉन्टिन्यूस वैल्यूज के लिए हमारा काम शुरू होता है। यूजुअली ये वाइल्ड कार्ड्स दीज आर फॉर कैटेगोरिकल कॉलम्स, कंडीशन इज फॉर कॉन्टिन्यूस कॉलम्स। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि रो आईडीज काउंट क्या कंडीशन हो जाए, एग्जैक्टली इक्वल हो जाए कि इतने ही ऑर्डर वाली ऑब्जर्वेशन चाहिए, ग्रेटर देन लेस देन सो मैनी थिंग्स, रेंज ऑफ वैल्यूज, मिनिमम मैक्सिमम एंड अगेन सो मैनी थिंग्स। तो आप कस्टम कंडीशन भी दे सकते हैं कि मुझे काउंट ऑफ रो आईडीज वही वाली देखनी है जो एक सर्टेन वैल्यूज सर्टेन रेंज में आ जाए, मिनिमम इतना मैक्सिमम इतना, तो वो भी कर सकते हैं। फिलहाल इसे नन कर रहा हूँ, फिलहाल कस्टम कंडीशन को नल कर दिया है मैंने, नन। बिकॉज हम कुछ और करने जा रहे हैं। देन देयर इज दिस टॉप, ये कौन है? ये वही है जो हम सोच रहे थे। कंडीशन को नन करना जरूरी है, अगर ये एक्टिव रहा तो वो कंडीशन ही मांगता रहेगा। सो इसको नन कर लेना पहले। नाउ आई एम गोइंग टू टॉप। अब कह रहा है कि क्या बताओ, अब मैं कह रहा हूँ कि यार टॉप 10 दिखाओ रो आईडी के काउंट। मेरे को क्या करना सारी दुनिया से? सो टॉप 10 यू कैन एंटर अ वैल्यू टॉप 12 15 20 वट एवर यू वांट। So let's say out of these 50 states, I am interested in only top 15. और टॉप भी जरूरी नहीं है, बॉटम भी ले सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट। फॉर नाउ आई एम सेलेक्टिंग टॉप 15, अप्लाई एंड अप्लाई। और ये क्या हो गया?
दिस इज हैपनिंग बिकॉज सेगमेंट भी घुसा हुआ है यहाँ पर। What did I do wrong? Count of providing in filter top only 10 ही देखने चलो। Can you guys do it? देख पा रहे हो आप में से कोई सा? Is there any better result? सर ये नहीं समझ आया इसमें गलत क्या है, ठीक तो होगा ना स्ट्रेट वाइज में टॉप 10 में ही। अच्छा लेकिन लिस्ट हमारे पास 3 आ रही है, ये गलती लग रही है। वही तो कह रहा हूँ, वही मैं देख रहा हूँ कि ओनली 3 दिखा रहा है ना। हाँ 6 इसमें है। Why is that happening? मैंने कुछ तो मुझसे गलत हो गया। So I think count of row ID नहीं लिया फिल्टर्स के अंदर। काउंट ऑफ ID, काउंट सर ऑफ मेरे में ID तो तो लिया पहले है ना। 6 स्टेट्स दिखा रहा है जो है। 6 दिखा रहा है, बताइए कितने हैं? बताए 6 दिखा रहा है, बताए 10 है। हाँ 8 है 10 है। और सर ये अगर काउंट ऑफ रो आईडी के हिसाब से देखें तो 10 हो गई ना। 6 कैलिफोर्निया की, 2 ये कैंटुच की जो भी, और ये 2 फ्लोरिडा, 10 हो गई ना। आपने टॉप 10 किया है ना, उसने काउंट ऑफ रोज में कर दिया होगा ना 6 + 2 + 2। सर फिल्टर्स में मैंने स्टेट लिया है, उस हिसाब से तो दिखा रहा है। रो आईडी नहीं लिया, अगर स्टेट ऑफ फिल्टर्स में तो वो शो कर रहा है टॉप 10 या टॉप 15। सर आपका काउंट 10 बन रहा है। अबे सही तो कह रहा है यार। 6 वो हाँ। हाँ खराब हो गई है तुम्हारे साथ रह रहे थे। मेरे को टॉप 10 स्टेट देखने हैं, मेरे को रो आईडीज थोड़ी देखनी है। वो रो आईडीज का टोटल जहाँ 10 पहुंच जा रहा होगा वहां पर रुक गया होगा। हाँ नॉट रीजन, रो आईडी and all the members use count state in rows descending order। हाँ मेरे को टॉप 10 रो आईडी थोड़ी देखने हैं, मेरे को देखने हैं टॉप 10। तो उसने टोटल देखा होगा कि टाउन 10 पहुंच गया काउंट और वो हो गया खड़ा। तो दिस वाज द यूटिलिटी हियर एक्चुअली। मेरे को सेलेक्ट करने थे स्टेट्स, तो हेयर आई कैन, दिस इज कस्टम कंडीशन, मैं कस्टम चूज कर सकता हूँ कौन सा स्टेट देखना है फिल्टर डाल के। तो 1 और मल्टीपल दैट कैन बी डन। हाउएवर यूजुअली जो हमारी प्रैक्टिकली समस्या होती है दैट इज आई वांट टू सी टॉप 10। so apply and apply and now I get to see only those top 10 states जहाँ हमें सबसे ज़्यादा ऑर्डर्स आ रहे हैं। अब बाकी इंफॉर्मेशन भी ठीक है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। सेगमेंट भी आप ला सकते थे, और कहाँ गया वो, उससे फ़र्क नहीं पड़ रहा था।
दैट वाज द रॉन्ग सिलेक्शन ऑफ फीचर। जो फिल्टर मेरे को देखना था, फिल्टर मेरे को स्टेट करने थे, नॉट काउंट ऑफ रो आईडी। सो दिस इज अगेन फिल्टर कार्ड। तो फिल्टर भी बहुत काम आता है। Many times you will be required to do something top 10, bottom 10. Sometimes you will need to apply custom filters. तो ये सब चीज़ें फिल्टर्स में काम आता है। ठीक है जी, ये भी ठीक हुआ। देन देयर इज सम यूटिलिटी विच इज, तो हमारे क्या देख चुके, काउंट ऑफ रोज देख चुके। चलो चलो ठीक है, बहुत हो गया काउंट ऑफ रोज, कुछ और करते हैं। Let's see, there will be problems like working with dates. Many times you will need to work with dates. So like order date, अगर हम ऑर्डर डेट देखें, यहाँ ड्रॉप कर दे रहा हूँ ऑर्डर डेट, और मैं क्या देखना चाह रहा हूँ, अभी काउंट ऑफ रोज तो बहुत हो गए, कुछ और पकड़ते हैं। सो लेट्स ग्रैब प्रॉफिट, और मैं प्रॉफिट डाल देता हूँ रोज पे। तो यू सी टैब्ल्यू हैज ऑटोमेटिकली टेकन इट लाइक हाउ, डेट से उसने निकाल लिया ईयर्स, एंड इट इज टेलिंग मी किस ईयर में हमारा टोटल प्रॉफिट कितना था, and automatically it is representing it like time series, which is a good idea by the way, है कि नहीं? अभी लेकिन आप बोलो कि यार बात तो सही है सर, लेकिन ईयर सीम्स वेरी मच रोल्ड अप, we need something more specific observation. What if I want month wise? So this is called roll up and drill down. जो आपने hierarchy कल समझा था ना, there is hierarchy, like if there is hierarchy of address, तो वो क्या होगी, country, state, city, and then maybe locality या pin code. So similarly is the hierarchy in date time. Time is also a hierarchy. तो कैसा शुरू हो रहा है hierarchy हमारा, years. उसने ऑटोमेटिकली डेट में से क्या पकड़ा है, ईयर, एंड देन देयर इज अ स्मॉल प्लस साइन, यू सी देयर इज अ प्लस साइन हियर, जिसका कहने का मतलब क्या है, दैट यू कैन ड्रिल डाउन दिस हायरार्की। So this is called roll up and drill down. Rolling up means सब कैटेगरीज से मेन कैटेगरीज की तरफ जाना, and drill down means from major category you are drilling down, you are going towards the different branches of subcategories. समझ आ रहा है? ये भारी भारी नाम है, मतलब कुछ नहीं होता है इनका, बड़ी सिंपल सी Yes. चीज़ें हैं। लेकिन जब कोई बोल देता है उस समय अगर सुना नहीं होता तो आपको लगता है कि पता नहीं क्या भुकाल हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा। तो यहीं पर हम इस हायरार्की में ड्रिल डाउन करें। इफ आई क्लिक ऑन दिस प्लस साइन, अच्छा हाँ ये मैं भूल गया था, मंथ से पहले तो क्वार्टर आता है यार, एवरी फाइनेंशियल क्वार्टर। सो ईयर को उसने ब्रेक करके दिखाया हुआ है कि किस क्वार्टर में कितना कितना हो रहा था हमारा। तो ओके, अब देखो कुछ पता चल रहा है। अगर मैं ये नहीं देख रहा था तो देखने में बड़ी अच्छी बड़ी सुंदर लग रही है पिक्चर हमारी।
11 में इतना प्रॉफिट हुआ, फिर इतना हुआ, फिर इतना हुआ, और हम तो चढ़ते ही जा रहे हैं, वाह 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 वाह। लेकिन जैसे ही ड्रिल डाउन किया, व्हाट डू वी सी? This was highest growth, this was a decent growth, this was insane growth in 2013, and what is happening in 14? We are almost stagnant. Yes or no? दिखा रहा है भाई तुम्हारे सामने। Yes, sir. So seems like a good idea. Now you see at year there is minus sign. So minus sign is for roll up. वापस ले आओ इसे हार को। ना ना ना, ये नहीं दिखाते बॉस को, ऐसी बातें नहीं बतानी चाहिए ना, रगड़ देगा। चलो तुम्हें दिखा देता हूँ। लेकिन ड्रिल डाउन किया तो यहाँ पर माइनस आ गया रोल अप के लिए, एंड क्वार्टर, नाउ क्वार्टर इज हियर एंड देन देयर इज प्लस साइन, बिकॉज क्या दिखा रहा है यहाँ पे कि अभी और ड्रिल डाउन हो सकता है आफ्टर क्वार्टर। लेट्स डू दैट। सो नाउ इट इज ब्रेकिंग डाउन इनटू मंथ्स। ईयर से क्वार्टर लिए Q1 Q2 Q3 एंड विद इन Q2 Q1 Q2 इट इज ब्रेकिंग डाउन इनटू मंथ्स के किस मंथ में क्या क्या हुआ। कर पा रहे हैं आप लोग? मोर और लेस ऐसे ही चल रहा होगा। यस सर। ठीक है, तो ये देख लिया। मंथ्स पे भी अभी ड्रिल डाउन का साइन बना हुआ है, दैट प्लस साइन इंडिकेट्स अभी और ड्रिल डाउन हो सकता है। हाँ जी, अब क्या ड्रिल डाउन होगा? मंथ तक तो आ गए। रिमेंबर ऑर्डर डेट है हमारे पास। Days हो सकता है। हाँ जी, डेट देख के टैबले को क्या क्या दिख गया है, ईयर दिखा, क्वार्टर भी पता चला, मंथ भी पता चला। इफ आई फर्दर ड्रिल डाउन, नाउ वी हैव कम डाउन टू एवरीडे बिजनेस, कि ऑन डे टू डे बेसिस हमारी सेल्स कैसी चल रही है, जनवरी में क्या हुआ, फरवरी में क्या 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 क्या, किस साल कौन से मंथ में क्या क्या हुआ। ठीक है, एंड फाइनली आफ्टर डे, अब डे पे कोई भी साइन नहीं है। यहाँ पर ये बता रहा है कि डे के पास ना तो ड्रिल डाउन होने के लिए कुछ बचा है, और जब ड्रिल डाउन होने के लिए नहीं है तो रोल अप भी नहीं हो सकता बेचारा। सर क्या हम इसमें से सिर्फ खाली मंथ ले सकते थे और ये बाकी सारा स्टॉप कर लेते? हाँ, अभी वो बात करते हैं। मैं इनफैक्ट वही बात करने जा रहा था, क्योंकि ये फिर वही बोल रही है प्रिया, और मेरे ख्याल से आप लोग भी बोलोगे, बाकी लोग जो बैठे हो, कि सर ज़्यादा नहीं हो गया कुछ ये? यस और नो? जस्ट यस बिकॉज सर। टैबल्यू ने फैसिलिटी दे रखी है, आप तो अति पे उतर आए हो। ये कोई तरीका थोड़ी होता है। तो हाँ, ये तरीका नहीं होता। तो दोनों तरीके हैं यार। मेरे को मंथ वाइज देखूं तो चलो बात समझ आती है, तो ठीक है, उठाओ और बाहर फेंको ना इसे, क्वार्टर बाहर, डेज बाहर, क्या करना है इतना देख के। एंड नाउ आई एम लेफ्ट विद ईयर वाइज डेटा, कि ईयर वाइज हमारे पास ईयर टू ईयर डिफरेंट डिफरेंट मंथ्स में क्या क्या हुआ है। हाँ जी, अब ठीक है। तो ये भी कर सकते हो, और भी कर सकते हो अगर आप, इफ सपोज आई एम काइंड ऑफ यू नो दिस सुपर स्टोर इज सेलिंग सम आइटम्स, अगर मेरे कुछ आइटम ऐसे हैं विच आर सीजनल, तो मे बी आई विल बी इंटरेस्टेड इन नोइंग के सीजन वाइज हमारा क्या हो रहा है प्रॉफिट। तो रिमूव ईयर, ईयर भी हटाओ। तो दिस इज गिविंग मी द ग्लोबल पैटर्न, कि मंथ टू मंथ ऑन मंथ हम यूजुअली हमारा क्या क्या होता है। तो इन पास्ट 4 years वी हैव सीन दैट वी मार्क हाईएस्ट सेल्स इन December somehow. We start off in October, November, December, जुलाई। अच्छा, ये एक चीज़ और बहुत बढ़िया दिखा रहा है वैसे,
एंड वेरी एविडेंट, वेरी प्रैक्टिकल। मालूम है क्या? टिपिकल टू सेल्स, वेरी टिपिकल टू सेल्स। कैन यू नोटिस? क्या कर रहा हूँ मैं? ये कुछ नहीं कर रहा, खेल खाल के देख रहा हूँ। और तुम भी कर सकते हो। नाइस, बढ़िया। मैं कुछ देख रहा था कि ईयर टू ईयर कुछ ऐसा ही चल रहा है क्या? हाँ, लगभग ऐसा ही होता है ईयर टू ईयर, हर ईयर में ऐसा ही कुछ हो रहा है। एक्सेप्ट चलो अगर मैं पेरेंट चार्ट देखूँ तो एविडेंट होता है, एकदम दिख जाएगा। ऐसे नहीं दिखेगा, अब दिखेगा। आई वॉज टेलिंग समथिंग टिपिकल टू सेल्स इज हैपनिंग हियर। मालूम है क्या हो रहा है? January usually sales is low. In February, almost the same. In March, it peaks. Fall down in April. May, June में चलो fall हो रही है. And then dips in July again. Then increases, then increases, then dips, then increases, then increases, then dips. क्या हो रहा है? सीजन वाइज तो नहीं लग रहा इतनी जल्दी, ना तो समर आती है ना विंटर। इनकम पॉइंट कह सकते हो, मार्च अप्रैल में क्लोजिंग होती है तब भी। हाँ मार्च अप्रैल में नहीं होती। अरे यही तो कैच है। US guys follow calendar year for their closings. इंडिया में जो फाइनेंशियल ईयर चलता है ना, वह 1 अप्रैल टू 31 मार्च। US फॉलो 1 जनवरी टू 31 दिसंबर। वो कैलेंडर ईयर के अकॉर्डिंग चलता है। वो सारी दुनिया से ही अलग चलते हैं, पता है ना तुम्हें? तुम किलोमीटर कहोगे तो वो माइल कहेंगे, तुम लीटर में को बोलोगे वो गैलन में बात करेंगे। तुम केजी कहो तो वो पाउंड में वेट करते हैं। बाकी सारी दुनिया में लेफ्ट हैंड ड्राइव है तो वहाँ राइट हैंड ड्राइव होगी। अरे ये सुनो, ये तो सारी चीज़ें मालूम होंगी। अवेंजर सीरीज, बैटमैन सीरीज कुछ तो देख ही रहोगे तुम। तो वही हो रहा है। दिसंबर में क्लोजिंग करके निपटा है हमारा सुपर स्टोर। सो जनवरी में हम ढीले बैठे हैं, कर ली सेल्स थोड़ी बहुत। फेब्रवरी, मार्च में आई क्वार्टरली क्लोजिंग विच ब्रिंग्स सर्टेन प्रेशर। तो भागे दौड़े, कुछ जान लगाई एंड गॉट सम सेल्स नंबर्स। अगेन फिर बैठ गए, हो गई ना क्लोजिंग, फिर ढीले पड़े। अप्रैल में अच्छा बाई चांस ये क्वार्टर खराब ही हो गया, तो अगले क्वार्टर में क्या हुआ है? जुलाई, देन इंक्रीज इन अगस्त, देन इंक्रीज इन सितंबर, क्वार्टर क्लोज। फिर डिले हुए, अक्टूबर में कुछ नीचे गई सेल्स। एंड सिंस इट इज द लास्ट क्वार्टर, सो ऑल गन्स फायरिंग। सर इसमें लेट्स सपोज अगर आप मंथ जैसे भी आया हुआ है, मंथ में आप देख रहे हो, अगर आप इसमें प्लस कर रहे हो तो ये डेज में जा रहा है। अब अगर मुझे इसमें वापस से अगर ईयर लिखे आना हो तो ये हटा के दोबारा ऐड करना पड़ेगा, कोई और ऑप्शन भी है? यहाँ पे हाँ, दूसरा ऑप्शन क्या है कि यहीं पर ये ड्रॉप डाउन से ना, रादर देन बार बार ड्रैग ड्रॉप करने के, यू क्लिक ऑन इट। ये देख रहे हो, व्हेन यू आर डीलिंग विद डेट, तो इट इज गिविंग यू रादर देन ऑप्शन के मेजर या डायमेंशन देने के। उसको मालूम है यू आर डीलिंग विद डेट नाउ, एंड डेट इज स्पेशल, इट इज नाइदर डायमेंशन नॉर मेजर, सो यू कैन चूज वॉट एवर यू वांट। तो डायरेक्टली यहाँ से भी कर सकते हैं। ठीक है, यू वांट टू सी द ईयर, वी आर बैक टू ईयर। ठीक है, ठीक है।
यहाँ तक भी ठीक हुआ। तो डेट वाइज हम आई थिंक हम हेलो सर। क्या देख लेना चाहिए हमें, मेरे ख्याल से आई थिंक नॉट क्वार्टर्स, मे बी मंथ्स। तो क्वार्टर्स को हटा देते हैं एंड डेट्स को कलर पे और ले लेते हैं सो दैट ईयर जरा हमारा कलरफुल आ जाए। एंड आई थिंक दिस सीम्स गुड, और मे बी क्वार्टर इज ऑल्सो डूइंग अच्छा लग रहा है। हेलो सर। यस प्लीज। सर जैसे हम देख रहे हैं जो ईयरली प्रॉफिट है वो तो हमेशा जैसे अगर मंथ में देखें या फिर ईयरली देखें वो तो सेम ही रहेगा। अगर हम ऐसे ईयरली देख रहे हैं तो 2013 में ज़्यादा दिखा रहा है, और फिर अगर मंथली देख रहे हैं तो 2014 में ज़्यादा दिखा रहा है प्रॉफिट ओवरऑल। समझा नहीं। सर जैसे हम ये ईयरली देख रहे थे, ईयरली वर्सेस ईयर ऑर्डर डेट हाँ वर्सेस प्रॉफिट का, ईयरली तो देख रहे हम हैं, ये देख रहे हैं। 2017 हाँ तो 2017 में हाईएस्ट देख रहे हैं प्रॉफिट। 2017 अगर इसको हम लोग यस सर 2017 है हमारा। 17 कहाँ से आ रहा है तुम्हारे पास? ये सर हमारे पास 14 to 17 है। यस सर 14 to 17 सर मेरा तो 18 to 21 है। अलग अलग और होगा। अगर सर अब कौन सा अगर हम डेटा इसको लेके बैठे हो? मंथली करते सैंपल हैं, सुपर स्टोर, एक डेटा तो मैंने भेजा था तुम्हें लिंक, ये वही है कोई और है? वही है सर। अरे वो हमने कैसे है? जो डाउनलोड किया है वो 14 to 17 ही आ रहा है इसमें। 14 to 17? अच्छा तुमने फिर वो वेबसाइट से डाउनलोड किया है ना टैबलेट वाले? हाँ सर टैबलेट वाली। हाँ अब ये हो सकता है हाँ कि वो डेटा उन्होंने अपडेट कर दिया हो, ये मेरे पास कुछ डिफरेंट है, वो कुछ और हो। नहीं सर तो इसमें भी मैं कह रहा हूँ कि अगर हम मंथली कर दें तो अब हम देख रहे हैं कि 2000 सेकेंड लास्ट में हाईएस्ट देख रहे हैं 2013 में, जैसे कि आपने है, और इससे पहले ये 14 में हाईएस्ट दिखा रहा था। 14 में हाईएस्ट ऐसे नहीं दिखा रहा था, 14 में हाईएस्ट। क्यूमुलेटिव पीपल, क्योंकि सर इसके हम कर्सर ले जाएं तो वहाँ पे भी तो दिस इज प्रॉफिट दिखा सम, रहा है। अरे सुनोगे, दिस इज सम ऑफ प्रॉफिट, माय बैड, मैं बताना भूल गया। दिस इज गेटिंग क्यूमुलेटिव, क्यूमुलेटिव एड अप होता जा रहा है। ओके ओके। सम ऑफ प्रॉफिट विद ईयर्स, तो हर साल का ऐड होते जा रहा है आगे आगे। जब इसको ड्रिल डाउन कर दिया तो नाउ इट हैज़ ब्रोकन इनटू क्वार्टर्स, कि इस क्वार्टर में क्वार्टर 1 में इतना था, क्वार्टर 2 में इतना पहुंचा, 3 में इतना पहुंचा, 4 में इतना पहुंचा, लेकिन 2001 की कहानी बस इतनी थी। ओके सर। ठीक है, क्यूमुलेशन हो रहा है, तो दैट वाज द कैच हियर। आप लोगों का जो ग्राफ दिख रहा है वो ग्राफ भी डिफरेंट दिख रहा है क्या, या सिर्फ डेट से चेंज दिख रहे हैं? तो ग्राफ सेम है, बस वो डेट्स पे। सिर्फ यस सर। ग्राफ सेम है, डेट चेंज हो गई है। अच्छा so this is updating by Tableau, this is updating like Adobe Acrobat, वो अपडेट ही होता रहता है जब देखो, और भगवान जाने क्या अपडेट होता है उसमें, बदलता कुछ है नहीं, चलता वो फिर भी नहीं। अपडेट चाहे रोज करवा लो मुझे। है ना तो टैबलेट ने भी ऐसा ही अपडेट किया, डेटा वही है, वही एक्सेल शीट, वही तीन एक्सेल शीट्स इन एन एक्सेल वर्कबुक, बट डेट चेंज कर दी है ताकि ऐसा लगे कि दिस डेटा इज फ्रेश, दिस इज वन इज रीसेंट डेटा। चलो ठीक है, so ठीक है, so that was working with dates, so we are done with our sheet number, another sheet। हम क्या क्या बना चुके हैं? अच्छा मैंने तो दोबारा ही बनाया, तो मेरे को शीट नेम बाद में, चलो दोबारा एंटर करेंगे। तो हम थोड़ा सा डेट वाइज भी आ गए, गेटिंग टू अनदर शीट। और क्या एनालिसिस कर सकते हैं, और क्या दिमाग में आता है एनालिसिस? देखो मेरे दिमाग में एक चीज़ आता है, एंड विच गिव्स मी अपॉर्चुनिटी। अभी तक हम क्या देख रहे थे? मेजर्स अगेंस्ट डायमेंशंस। सपोज मैं कुछ ऐसा देखना चाहूँ, व्हेन इट इज मेजर अगेंस्ट मेजर, फॉर एग्जांपल
फॉर एग्जाम्पल क्या देखना चाहेंगे? सपोज मैं देखना चाहूँ कि अगर, और ये तो देखो यूजुअली होता भी है ना, यूजुअली इट हैपन्स दैट इफ क्वांटिटी इज हाई, इफ क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट्स सोल्ड इज हाई, तो मुझे डिस्काउंट देना पड़ जाएगा, कस्टमर डिस्काउंट मांग लेगा। काइंड ऑफ एनालॉजी। इफ प्रोडक्ट्स आर, अगर मैं मतलब मेरे कहने का मतलब ऐसा नहीं कि एक प्रोडक्ट तो आपका आईफोन है और दूसरा प्रोडक्ट पेंसिल है, नॉट लाइक दैट, बट इफ प्रोडक्ट इज सेम और सिमिलर, सही बात है। तो अगर इस तरह की कहानी मेरे को देखनी हो, आइए देखते हैं। सो सपोज माय प्रोडक्ट इज चेयर, सब कैटेगरी इज चेयर्स, so let's have a look at chairs, what happens in chairs. So the subcategory of product, which is where here, bringing it to filter, and let's choose chair only. तो subcategory is chairs, और chairs में मैं क्या देखना चाहता हूँ, what happens to discount when something happens in quantity. तो हाँ जी, क्या कर दिया उसने, वो दिखा रहा है कोई 2500 चेयर बिकी हैं और टोटल डिस्काउंट 100 रुपये दिया है हमने। क्या यही देखना चाहते थे हम? शायद ये तो इंटेंशन नहीं था हमारा। और क्या बना सकते हो, और भी कुछ बना सकते हो? हाँ चलो देखते हैं। टेबुलर फॉर्म, तो वो टेबुलर फॉर्म में बताने लगा वही बात जो अभी देख रहे थे हम। तकरीबन 2500 क्वांटिटी बेची है चेयर्स की, 100 रुपये डिस्काउंट दिया, 105, ये मतलब डॉलर है। बार चार्ट दिखाओगे, दोनों बार बन गए, और भी ख़राब हो गया। ये तो उसने बाय डिफ़ॉल्ट ही दिखाया था। गैंट व्यू अभी यूज़ ही नहीं कर सकते, पोलर ग्राफ है नहीं, बबल चार्ट अवेलेबल नहीं है, हिस्टोग्राम अभी कुछ भी काम नहीं आ रहा। Why is this happening? This is happening because, ये देख रहे हो यहाँ पर सम ऑफ क्वांटिटी ले लिया उसने, बिकॉज उसकी टेंडेंसी है व्हेन एवर यू विल चूज मेजर्स, वो मेजर्स को कुछ ना कुछ करने, अभी तक आप देखते रहे हो, जैसे ही आप कोई वेरिएबल चूज करते हो, डिपेंडिंग अपॉन द वेरिएबल एंड द डेटा टाइप ऑफ दैट वेरिएबल, Tableau automatically decides to do something with it. अरे यस और नो किया है ना ये अभी तक उसने। So when we choose measures, so depending upon the data types are quantity is integer, discount is float, it is automatically deciding कि शायद मेरे को टोटल कर देना चाहिए। अभी मेरे को टोटल नहीं चाहिए, मैं क्या चाहता था, हर ऑर्डर में जितनी क्वांटिटी है वो, और हर ऑर्डर, उस ऑर्डर में जो भी डिस्काउंट हुआ है वो, और एक स्कैटर प्लॉट आता तो बड़ा मजा आता। क्या सुनो देखने को मिलता मेरे को क्या हो रहा है। रिमेंबर स्कैटर प्लॉट। अगर ऐसा कुछ होता तो बहुत ही बढ़िया रहता। सर आपके में ये क्वांटिटी 500, 1000, 1500 आ रही है, मेरे में 5000, 10,000 ऐसे आ रही है।
ऐसा क्यों? अरे डेटा चेंज हुआ है ना तुम्हारा यार, अभी तो बात खत्म हुई थी, थोड़ा बहुत चेंज नहीं, होगा। लेकिन ये तो बिल्कुल ब्लैंक आया है, इसमें तो आपके में जैसे एक सर्कल तो आया, इसमें तो ये भी नहीं आया। आया आया आया, आ गया आ गया, ठीक है, हो गया। ठीक है, ये क्लैरिटी हम क्या सोच रहे थे, हम चाह रहे थे कि स्कैटर प्लॉट आए तो बात बन जाती, लेकिन अभी टैब्लू ने कर दिया ऐड, और ऐड करने की जगह मैं कुछ और सोचूं तो वो कुछ यहाँ पर ऑप्शन दिख नहीं रहा है। मेजर ऑफ सम क्या क्या हो सकता है, सम, एवरेज, काउंट, मीडियन, मैक्सिमम, मिनिमम, परसेंटाइल, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये सब। आप सोचो इसे डायमेंशन में चेंज कर दें तो क्वांटिटी इज डायमेंशन एंड डिस्काउंट इज ऑल्सो डायमेंशन। नाउ दे आर बीइंग ट्रीटेड एज कैटेगोरिकल वेरिएबल। ये भी नहीं चाहते थे हम, इससे भी बात नहीं बन रही है। एक्चुअली करना क्या था, हम चाहते थे कि ये टोटल नहीं हो, यस और नो। सारी बात ये थी कि ये टोटल ना हो जाए, दिस सम शुड नॉट हैपन। सो देयर इज फैसिलिटी हेयर, यू गो टू दिस एनालिसिस टैब हेयर, ऊपर एक एनालिसिस टैब होगा, इफ यू क्लिक ऑन दैट you see aggregate measures, so there is a check mark there, so that is why Tableau is automatically trying to aggregate measures. Remember aggregate functions, sum, average, minima, maxima, count, तो वो उसको उस बेसिस पे एग्रीगेट करने का कोशिश कर रहा है। आई डोंट वांट दैट। इफ आई रिमूव दिस एग्रीगेशन, now it will appear something like this. और अब ये मेरे को बता रहा है कि कितनी क्वांटिटी रहने पे हमने कितना कितना डिस्काउंट ऑफर किया है। सो इट सीम्स लाइक क्वांटिटी चाहे एक हो, दो हो, चार हो, हमने हर क्वांटिटी पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिस्काउंट दिए ही हैं। सो सीम्स लाइक देयर इज नो कोरिलेशन of discount with quantity. Maybe discount depends on something else, maybe customer type, customer segment, yeah, maybe there is some regional bias, something like that. सही बात है, क्वांटिटी पे तो डिपेंड कर नहीं रहा, एंड प्रोडक्ट इज एनीवे द सेम, इट इज शेयर ऑलवेज। ठीक है जी। सर ये क्वांटिटी खाली कैसे रह गया, ये नहीं समझ आ रहा। कौन सा क्वांटिटी खाली रह गया? जैसे मेरे में भी सम आ रहा है, अगर मैं इसको सम आ रहा है, ये एग्रीगेट मेजर्स ऑफ कर दिया यहाँ से एनालिसिस पे जाके। एक सेकंड, जब ऑफ कर दोगे तो आ जाएगा स्कैटर प्लॉट। बाकी लोग आ गया? हाँ अब ठीक है। यस सर, गॉट एवरीबॉडी? गॉट इट। ठीक है जी। तो ये एग्रीगेट्स को कब मेजर करना है, ये मेजर्स एग्रीगेट को मेजर नहीं करना है, मेजर को एग्रीगेट करना है। तो कब कौन से को करना है? सो दिस ऑल्सो यू कैन अकॉर्डिंगली चूज। बाकी कहानी सेम है, सेगमेंट वाइज कलर भरना है ना, स्टेट वाइज लेबलिंग करना, वो सब अभी भी है आपके पास। रीजन वाइज शेप दे दो अलग अलग। सर ये स्कैटर प्लॉट में जैसे सर्कल आ रहे हैं, इसकी शेप चेंज कैसे किया आपने? शेप पे मैंने अच्छा ये रहा ना शेप, यू कैन चूज डिफरेंट शेप्स। ठीक है, अभी थोड़ा सा डेटा पे ही वापस, डेटा सोर्स पे ही डेटा से प्ले थोड़ा सा प्ले अराउंड देखेंगे। वी हैव सीन डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ ग्राफ्स, कि क्या क्या वैरायटी ऑफ ग्राफ्स हैं, कब कौन सा यूज़ कर सकते हैं, एंड हाउ टू ऐड वेरियस एट्रीब्यूट्स टू ग्राफ।
ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन सेंसिबल फॉर्म में ग्राफ पे कैसे ला सकते हैं, डीलिंग विद डेट्स वो भी आपने देख लिया, एंड डीलिंग विद मेजर्स वो अभी देख रहे हैं, दैट व्हेन मेजर इज अगेंस्ट मेजर, अगर मेजर अगेंस्ट डायमेंशन है तो बहुत अच्छा है, बट इफ मेजर is against measure, then it becomes a little bit of tricky. You have to make sure that measures are not aggregated. तो यहाँ तक कहानी हो चुका है, एक ब्रेक कर लेते हैं, शैल वी? Yes, sir. Must. मस्ट है Yes, sir. क्या हो गया ज़्यादा हो गया आज के लिए? चलो ठीक है, ओके, लेट मी लीव अ नोट फॉर यू। लिंक से ड्रॉप नहीं होंगे बिकॉज मेरे को अटेंडेंस मार्क करना होगा, तो लिंक छोड़ के नहीं जाएंगे। यू कैन जस्ट म्यूट योरसेल्फ एंड गो इफ यू वांट टू मूव अराउंड, एंड प्लीज बी बैक इन टाइम। वी रिज्यूम एट what it is 5:17 already, so maybe we can resume at 5:30. That will do. Okay, sir. ठीक है, so stay on the link and be back in time please.